Hello friends, good afternoon all of you. Welcome to the Mission Conquering Exam channel. Today is 25th November 2020. My name is Kanchan. So we are here to do our today's vocab series. So without wasting much time, we'll start a series of vocab. So today's first word is jealous. Jealous is an adjective and the meaning for the word is fervent, excited. Any person who is excited in doing anything, ये किसी भी चीज को करने के लिए जो एक्साइटमेंट होता है, उत्साही होता है, fervent होता है, वो जो होगा मीनिंग होगा वर्ड जीलस का. एंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज ardent, fervid, eager, enthusiastic, keen and committed. All of these words are the synonym for the word jealous. And sorry friends, and antonym for the word is apathetic and indifferent. Indifferent and apathetic, both of these words are the antonym for the word jealous. And the example for the word is the council was extremely jealous in the application of the regulation. जो council है वो बहुत ज़्यादा enthusiastic है, बहुत ज़्यादा eager है कुछ regulations के applications को लेके. Let's move to our next word. Our next word is appealing, and appealing is an adjective and meaning for the word is attractive. ग्रैब अटेंशन ऑफ एनीथिंग, तो वो होगा अपीलिंग का मीनिंग. मतलब कोई भी चीज हो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, किसी का अटेंशन ग्रैब करती होगी, अटेंशन वही ग्रैब करेगी जो कि बहुत ज्यादा अपीलिंग होगी. एंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज इंगेजिंग, alluring, enchanting and tempting. All of these words are the synonym for the word appealing, and the antonym for the word is off-putting, disagreeable and unappealing. Unappealing is the antonym for the word appealing. And example for the word is village life is somehow more appealing than cities. यानी कि जो विलेज लाइफ है वो somehow ज़्यादा अपीलिंग है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है सिटीज़ लाइफ से, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, मोनोटोनस, बोरिंग बहुत ज़्यादा होती है. इसीलिए कौन सी सिटीज की लाइफ, इसीलिए विलेज की लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, अपीलिंग होती है सिटीज की लाइफ से. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी इज अ नाउन एंड मीनिंग फॉर द वर्ड इज फाइटिंग. किसी भी चीज को लेके फाइट करना जो होगा मीनिंग होगा हॉस्टिलिटी का. एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड हॉस्टिलिटी इज एनिमी ऑल्सो. एनिमी जो होगा वो भी मीनिंग होगा किसका, हॉस्टिलिटी का. वैसे ये एनिमी जो वर्ड है मीनिंग ये हॉस्टाइल का होता है और हॉस्टाइल से ही हमारा हॉस्टिलिटी बना हुआ है, बट हॉस्टिलिटी हमारा नाउन है. एंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट, कम्बैट, bitterness, hatred and aggressiveness. All of these words are the synonym for the word hostility. Conflict, combat, bitterness, hatred, aggressiveness. All of these words are the synonym for the word hostility. And the antonym for the word is peace and friendliness. Enemy is the meaning for the word hostility and friendliness is the antonym for the word hostility. And approval and recognition, approval, positivity, all of these words are the antonym for the word hostility. And the example for the word is he called for an immediate cessation of hostility. Friends, this is a very easy sentence, so I think you understand the meaning for the word well. So let's move to our next word. Our next word is relative. Relative is an adjective and meaning for the word is comparative. किसी चीज को लेके कंपैरिजन करना हमारा मीनिंग होगा रिलेटिव का. एंड कंपैरिजन जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है. एंड सिनोनिम फॉर द वर्ड इज रेस्पेक्टिव, कंपैरेबल, पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंड कोरिलेट. फ्रेंड्स पैरेलल जो होती हैं वो दो ही लाइंस हो सकती हैं, दो जो होते हैं वो पैरेलल होती हैं. जब भी देखा होगा मैथ्स वगैरह में पैरेलल जो होते हैं वो दो होते हैं, तो वो हो गया हमारा कंपैरिजन हो गया. ठीक है. एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज एब्सोल्यूट, complete and great. All of these words are the antonym for the word relative. And here the example for the word is the relative effectiveness of the various mechanism is not known. यानी कि जो कंपैरेबल इफेक्टिवनेस है बहुत सारे मैकेनिज्म की वो हमको अभी तक नहीं पता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेट. एजिटेट इज अ वर्ब एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड इज अपसेट. किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सैड फील करना, अपसेट रहना. अपसेट तभी रहेंगे जब हम सैड होंगे. एंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज पेट अप, फ्लस्टर, डिस्टर्ब, बॉदर, ट्रबल.
कोई इंसान ट्रबल में होगा, बॉदर मीन्स परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा तो ही अपसेट होगा। फ्रेंड्स फट अप हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप ओके प्लेलिस्ट में जाके उनको भी चेक कीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड एंटोनियम फॉर द वर्ड इज काम एंड ट्रैंक्वाइल, और बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर द एंटोनियम फॉर द वर्ड एजिटेट। एंड द एग्जांपल फॉर द वर्ड इज द थॉट ऑफ क्वेश्चनिंग टोनी अजिटेट हिम एक्सटर्नली। जो क्वेश्चन के थॉट्स आते हैं, किसी चीज को लेके डाउट होना, कंफ्यूजन होना, वो एजिटेट करता, अपसेट करता उसको बहुत ज्यादा। Let's move to our next word. Next word is tiresome. Tiresome is an adjective and the meaning for the word is boring. कोई भी चीज टायरसम जब होगी जब बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, इंसान जब बोर फील करता है किसी भी चीज को लेके तो वो उसको टायर्ड होके करता है, बहुत अपसेट मूड से करता है, तो वो चीज होता है मीनिंग टायरसम का, कोई भी चीज थकाने वाली हो। एंड सिनोनिम फॉर द वर्ड इज डल, tedious, monotonous is also the synonym for the word tiresome। फ्रेंड्स जो हमारा मोनोटोनस, कोई भी इंसान किसी भी चीज को काम को इंटरेस्ट लिए बगैर करेगा तो ऑब्वियसली उसको लेके वो टायरसम फील करेगा, अगर इंटरेस्ट के साथ में करेगा तो एनर्जेटिक फील करेगा। तो यही इसका सिनोनियम हो जाएगा, बोरिंग, मोनोटोनस, डल, टीडियस, ये सब जो होंगे टायरसम के सिनोनियम होंगे। एंड द एंटोनियम फॉर द वर्ड इज इंटरेस्टिंग, एनर्जेटिक एंड एक्साइटिंग, zeal, enthusiastic. All of these words are the antonyms for the word tiresome। And the example for the word is weeding is a tiresome, weeding बहुत ज़्यादा थकाने वाला है, but essential job, लेकिन एक essential job है। Let's move to next word. Next word is glorify. Glorify is a verb and the meaning for the word is ennoble। किसी चीज को क्या करना, इन ऑगमेंट करना, बढ़ाना। किसी चीज को जब हम करते हैं ग्लोरीफाई करना, कोई भी चीज बढ़ा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा मीनिंग। ग्लोरीफाई का मीनिंग होगा किसी चीज को इंक्रीज करना, उसको ऑगमेंट करना, उसको एनोबल करना। एंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज एक्सल्ट, एलिवेट, ऑगमेंट, वर्शिप, devoted। All of these words are the synonym for the word glorify। And the antonym for the word is dishonor and vilify। Both of these words are the antonym for the word glorify। And here's the example for the word is a football video went viral ग्लोरीफाइंग वायलेंस। ग्लोरीफाइंग वायलेंस के साथ में क्या हो गया, वो एलिवेशन के साथ में एक ऑगमेंटेड वायलेंस के साथ में फुटबॉल वीडियो जो हो गया वो क्या हो गया, वायरल हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज अबैट। अबैट इज अ वर्ब एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड इज सबसाइड। किसी चीज को सबसाइड करना यानी कि कम करना, किसी को घटाना, रिड्यूस करना। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी meaning for the word abate। And a synonym for the word is lessen, let up, reduce, curtail। All of these words are the synonym for the word abate। फ्रेंड्स रिड्यूस और कर्टेल वर्ड जो है और लेसन वर्ड जो है ये प्रीवियस वीडियोस में कवर किया जा चुका है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाके उनको चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कर्टेल और रिड्यूस का मीनिंग मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिसने देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस मेंशन कीजिएगा। एंड द एंटोनियम फॉर द वर्ड इज इंटेंसिफाई, इंक्रीज एंड ऑगमेंट। फ्रेंड्स हमारा जो अबैट है उसका जो इंटोनियम होगा वो इंक्रीज और ऑगमेंट होगा, और ग्लोरीफाई का सिनोनियम जो होगा वो ऑगमेंट होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोरीफाई जो होगा वो अबैट का एंटोनियम हो जाएगा, और ग्लोरीफाई में अबैट जो होगा वो क्या होगा, एंटोनियम एंटोनियम हो जाएगा किसका, ग्लोरीफाई का। एंड हियर्स द एग्जांपल फॉर द वर्ड इन एन आवर और सो द स्टॉर्म वुड अबैट एंड दे कुड लीव। यानी कि एक घंटे में या फिर कुछ, एक घंटे या कुछ में जो स्टॉर्म है वो अबेट हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, घट जाएगा। एंड दे कुड लीव, और वो जा सकेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड इज ब्रीफ। एंड हियर द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज ट्रांजिएंट एंड शॉर्ट लिव्ड। कोई भी चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, तो वो होगा हमारा फ्लीटिंग मीनिंग का। कोई भी चीज़ बहुत छोटे फॉर्म में बताई जा रही है तो वही होगा शॉर्ट लिव, ट्रांजिएंट। एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज लास्टिंग, लॉन्ग, exaggerate। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द एंटोनिम फॉर द वर्ड
फ्लीटिंग। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि एक्सेगरेट वर्ड हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, और जिन्होंने नहीं देखे तो आप वोकैब प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। And here's the example for the word is for a very fleeting moment I saw his face। इनकी बहुत बहुत माइन्यूट भी हमारा सिनोनिम हो जाएगा फ्लेटिंग का। तो माइन्यूट यानी बहुत छोटे टाइम मोमेंट के लिए मैंने क्या किया, उसका फेस देखा था। आई सॉ हिज फेस। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा ये कौन सा टेंस है जो मैंने सेंटेंस में यूज किया है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लॉसी। कोई भी चीज, ग्लॉसी इज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड इज एक्सपेंसिव। कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ग्लॉसी, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। एंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड इज high quality, stylish, brilliant, and sparkling. All of these words are the synonym for the word glossy. And the antonym for the word is cheap, lusterless, and dull. Dull जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंटोनियम हो जाएगा glossy का। And here is the example for the word is this is just another glossy TV mini series। यानी कि ये जो है जस्ट एक दूसरा ग्लॉसी मतलब एक्सपेंसिव टीवी मिनी सीरीज है। फ्रेंड्स, this is the end of the video. If you like this video, please don't forget to like this video, and this is the end. And if you like this video, please like कीजिएगा और share this video as much as you can and subscribe the channel। अगर आपने अभी तक नहीं किया गया है, साइड में एक बेल आइकन दिया गया होगा, प्लीज़ उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड